মাঠে উপস্থিত হয়েছে। এরপর আমি যার পরিচয় দিচ্ছি, আমাদের সকলের প্রিয় দাদা মাননীয় প্রদীপ থাকা মহাশয়, বিভাগ সংগঠন সম্পাদক ও উত্তরবঙ্গ পাত্র সৎসঙ্গ প্রমুখ। এরপর যার পরিচয় দিচ্ছি, তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের, আমাদের লোকালে প্রসেনজিৎ সরকার মহাশয়, বিভাগ সহ সম্পাদক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এবার আমরা প্রখণ্ড অনুযায়ী আমরা নিজের নিজের পরিচয়টা দেব। তো সর্বপ্রথম আমি বক্সিরহাট প্রখণ্ড থেকে যারা আসছে তার আগে বলবো, বক্সিরহাট প্রখণ্ড নাম দায়িত্ব বলো। চাকরি বলো। আমি এখানে অ্যাডভাইস করছি, আমি বক্সিরহাট প্রখণ্ডের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সম্পাদক সুব্রত সরকার। জয় শ্রীরাম। এরপর আমরা নাটাবাড়ি প্রখণ্ডে বলবো। নাটাবাড়ি প্রখণ্ডে যারা আছেন তো তারা আমাকে পরিচয় দেবেন। জয় শ্রীরাম, আমার নাম শঙ্কর বর্মন, নাটাবাড়ি প্রখণ্ড বচনন্দল সংসদ। জয় শ্রীরাম, চন্দন দেবনাথ, নাটাবাড়ি প্রখণ্ড বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্পাদক। তুফানগঞ্জ প্রখণ্ডের আর কেউ আছেন? এবার আমাদের আরেকটা কার্যকর্তা আরেকজন আছেন, তার পরিচয়টা আমি করিয়ে দিচ্ছি। জিতেন্দ্র অধিকারী, আমাদের মাননীয় জিতেন্দ্র অধিকারী, তুফানগঞ্জ প্রখণ্ডেই বাড়ি। উনি আমাদের বিভাগ বজরং দল সহ সংযোজক। আমাদের পরিচয় পর্ব শেষ হলো। এবার আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠান দিকে যাচ্ছি। তো সর্বপ্রথম যে পরবর্তী অনুষ্ঠান আছে আমাদের, সেটা হচ্ছে নৃত্য। তো এই নৃত্যে যেহেতু আমরা একটা বিশেষ মুহূর্তে আজকে এখানে সম্মিলিত হয়েছি, সেই মুহূর্তটা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী এবং আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 60তম জন্মবার্ষিকী বা স্থাপনা দিবস। তো সেই জন্য যে নৃত্য অনুষ্ঠানটা শুরু করবো আমরা, সর্বপ্রথম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটা নৃত্য দিয়ে শুরু করব এবং সেই নৃত্য পরিবেশন করছেন সুপ্রীতি সরকার। পরিচয়টা দিয়ে দিই, আমার মেয়ে সুপ্রীতি সরকার।
জয় শ্রীরাম। এরপর একটি কৃষ্ণ ভজন গাবে। আসো। তোমাদের নামটা বলো। আমার নাম সুপ্রীতি দে। রীতা বসাক ও সুপ্রীতি দে দুজনে শ্রীকৃষ্ণের একটি ভজন গেয়ে শোনাচ্ছেন। সর্ব
হরি ওম। হরি ওম, হরি ওম, হরি ওম, হরি ওম। এবার আমরা পরবর্তী কার্যক্রমে যাচ্ছি। এবার একক গীত পরিবেশন করছেন পীযূষ রাভা। এই মেয়েরা এই এদিকে না ওখানে বস। হরি ওম, হরি ওম। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का नदी का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का नदी का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा दिल मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन जान मन जान मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का नदी का प्यार का चमन। इसके मिट्टी से बने तेरे मेरे वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन जान मन जान मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोने कोने अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा दिल मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन जान मन जान मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा दिल मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन जान मन जान मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन जान मन जान मन। খুব সুন্দর পরিবেশন করলেন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। हिंदू सदा सर्वे न हिंदू प्रतीत भवे। ममो दीक्षा हिंदू रक्षा, ममो मंत्र समानता। অর্থ সকল হিন্দু আমার সহোদর ভাই, হিন্দু কোনোদিনও পতিত হতে পারে না। আমার দীক্ষা হলো হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা, সমানতাই আমার ধর্ম। হিন্দু সদা सर्वे न हिंदू प्रतीत भवे। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता।
प्रांगण में हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद का षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम, षष्ठी पूर्ति बोला तो विश्व हिंदू परिषद को प्रारंभ हुए 60 साल हो गए। 61वां ये प्रारंभ हो रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद जब प्रारंभ हुआ उससे पहले इस देश की स्थिति कैसी थी, क्या था, कैसा संघर्ष था, हिंदुओं के अंदर की भावनाएं कैसी थी, हिंदू किस तरीके से क्षेत्रों में बटा था, भागों में बटा, भावों में बटा, तो सबको महसूस हुआ कि इस देश के हिंदुओं को जगाना चाहिए, इस देश के हिंदुओं को संगठित भी करना चाहिए, इस देश के हिंदुओं के मान, हिंदुओं की भी रक्षा करनी चाहिए, इस देश की जो भारतीय हिंदू संस्कृति है और सभ्यता है उसका भी संरक्षण करना चाहिए, इस देश की जो सनातन संस्कृति है उसका भी संरक्षण करते हुए इस देश के अंदर उसका आचरण हो, यह भी प्रचलन में लाना चाहिए। अनेक ऐसे बिंदुओं पर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में एक शांतिवनी आश्रम मुंबई में स्वामी चिन्मयानंद जी का आश्रम था। वहाँ एक देश के साधु, सन्यासी, सामाजिक, राष्ट्रीय वैचारिक लोगों ने तत्काल संघ के द्वितीय संघ चालक पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर, उनके मार्गदर्शन में, सानिध्य में ये विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कर दी। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म का क्षेत्र ही हमारा ये कार्य क्षेत्र होगा। तो हिंदू केवल भारत में रहता है उसकी चिंता करेंगे नहीं, दुनिया के अंदर कहीं भी हिंदू रहता है हम उसका भी चिंतन करेंगे। उस समय अपने देश से गए हुए बहुत बड़ी संख्या में मजदूर जो अंग्रेज ले गए थे गन्ना की खेती कराने के लिए, धान की खेती कराने के लिए, ऐसे बहुत सारे देशों के अंदर आज भी हिंदू है। वहां मंदिर भी हैं, वहां पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आज उनकी खड़ी हो गई। आज वो अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करते, अंग्रेजों का कानून भी उनके ऊपर अब नहीं चलता। उस देश का जैसा संविधान है उस संविधान के तहत वो वहां अपना नागरिक जीवन व्यतीत करते हैं। आज वो सामर्थ्यशाली है, उनके पास खेती बाड़ी है, स्वयं सक्षम है, उनकी इच्छा है कि भारत का कोई भी व्यक्ति आके हमारे बच्चों को गीता और रामायण का अध्ययन कराए, हमारे बच्चों के संस्कार कराए, हमारे इस मंदिर के अंदर घंटा, घड़ियाल, शंख, भगवान की आरती, पूजा पाठ ये व्यवस्थित तरीके से हो, यहाँ भी भोग भंडारा यहाँ भी चले। आज उन छोटे छोटे देशों में उन्होंने भारत की भूमिका खड़ी कर दी और यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको लगता है कि हम भारत में ही आ गए, हम अपने ही किसी प्रदेश में आ गए, हमारी बोली भाषा के लोग यहाँ पर हैं, हमारी परंपरा के लोग यहाँ पर हैं, हमारे खान पान के लोग यहाँ पर हैं, और लगता है कि इनका संरक्षण, इनका मार्गदर्शन, इनकी शिक्षा दीक्षा ये सब होनी चाहिए।
इनकी संस्कृति में हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। जब ये चिंतन प्रारंभ हुआ तो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने उस देश के अंदर भी भ्रमण करना शुरू किया और शुरू करते करते देश के अंदर हर 5 साल के बाद एक विश्व हिंदू सम्मेलन प्रारंभ हो गया। और विश्व हिंदू सम्मेलन के अंदर उन सारे देशों के प्रतिनिधि आते हैं। अब ये सारे प्रतिनिधि आते हैं तो उनके कारण और बड़े बड़े लोग जो भारत के लोग हैं वहाँ बिजनेस करते हैं वह भी जुड़ने लगे। और अभी अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बन रहा था उनकी बहुत इच्छा है कि हमारा भी धन उस मंदिर के निर्माण में लग जाए, लेकिन हमारे देश ने वह अभी अनुमति नहीं दी कि विदेशों का पैसा हम अभी नहीं लगाएंगे। उसके लिए LCRA चाहिए, 3 साल का रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो सब पूर्ण हो जाने के बाद विदेश का पैसा यहाँ आ सकता है। लेकिन वो विदेश से पैसा तो आएगा, लेकिन भेजने वाला कौन था? तो भेजने वाला वो हिंदू ही है। अब ऐसी स्थिति देश के अंदर कैसे खड़ी होगी? तो हम 60 साल पहले जाते हैं विश्व हिंदू परिषद के 1964 से पहले। इस देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में गौवंश की हत्या होती है। साधु संन्यासी सड़कों पर निकलकर आंदोलन करते थे, हमको भी मजबूर करते थे कि गौ मांस भक्षण मत करो। हमारे दिलों में उनकी बात उतरती थी। एक बार वो 1966 में दिल्ली चले गए, बहुत बड़ा आंदोलन किया। तत्काल उस समय की जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने गौवंश रक्षा के लिए बात तो सुनी, लेकिन स्वीकार नहीं किया कि हम गौवंश की रक्षा नहीं कर सकते। ये तो प्रदेशों का, स्टेटों का विषय है। और जब आंदोलन उग्र हुआ तो उन संतों के ऊपर गोलियां चली, सैकड़ों की संख्या में उन संतों के बलिदान हुए। और जब बलिदान हुए तो ये विश्व हिंदू परिषद का पहला आंदोलन बन गया कि गौवंश रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद आंदोलन चलाए। इसलिए एक गौ रक्षा समिति बन गई। गौ रक्षा समिति के माध्यम से यह आंदोलन चलता रहा कि पहला दशक 60 के और 70 के बीच का जो दशक है, इस दशक में आंदोलन हमने प्रारंभ किया। गौरक्षा के आंदोलन के बाद एक दूसरा 70 से 80 का जो दशक आता है, तमिलनाडु के अंदर एक रहमत नगर गांव है। पहले उस गांव का नाम कुछ और था। उस गांव का 1978 में संपूर्ण धर्मांतरण कर दिया। हिंदुओं से उन्होंने मुसलमान यानी इस्लाम में तब्दील कर दिया। सारे देश के अंदर आग लग गया। सारा देश का हिंदू उत्तेजित हो गया। गांव का गांव कुएं में अपवित्र वस्तु डालकर सारे गांव के अंदर ये सब चीज कर दी। उस गांव को बचाना चाहिए। केवल गांव का ही चिंतन नहीं, तो संपूर्ण देश के अंदर ये चिंतन प्रारंभ हुआ कि जो हिंदू मुसलमान बना है, ईसाई बना है, उसको हम उन्हें अपने धर्म में वापस लाएंगे। और एक शुद्धि का अभियान, परावर्तन का अभियान ये दूसरे शतक में विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ कर दिया। तो उस दशक में धर्मांतरण रोको, परावर्तन करो, अपने सारे बंधुओं को अपने घर वापस बुलाओ। ये अभियान एक शुद्धि के रूप में, परावर्तन के रूप में चलता रहा। आज भी वह अभियान हमारा जारी है। हम उन सब भटके भूले बिसरे उन हिंदुओं को अपने घर वापस लाने के लिए प्रयास करते हैं।
अब तीसरे दशक में देखें तो 80 और 90 के अभियान में हमारा जो संकल्प था कि हम अपने मान बिंदुओं की, धर्म के प्रतीकों की रक्षा करेंगे। तो हमने सबसे पहले गंगा यात्रा, एकात्मता यात्रा पूरे देश के अंदर प्रारंभ की। तो एक यात्रा बद्रीनाथ से चली, एक यात्रा रामेश्वरम से चली और एक यात्रा नेपाल से पशुपति नाथ से चली, काठमांडू से चली। ये यात्राएं संपूर्ण देश के अंदर घूमते रही, प्रवास करती रही। लाखों लाखों लोग, हजारों हजारों लोग इस बड़ी बड़ी इन यात्राओं में इकट्ठे होते थे और उन कलशों के अंदर जो यात्राओं का, तीर्थों का जो जल था उसका आचमन करते थे और अपने तीर्थ का जल उसमें डाल दिया करते थे। एक बहुत बड़ा सम्मेलन नागपुर में इन 3 यात्राओं के सम्मेलन से ऐसा लगा कि सारा हिंदुस्तान यहाँ एकत्रित हो गया है, सारा हिंदुस्तान एकत्र हो गया है। तो उन आंदोलन से, अभियान से, हिंदू सम्मेलनों से लगा कि हिंदू बटा नहीं है, हिंदू अलग भी नहीं है, हिंदू के अंदर कोई भेद भी नहीं है, हिंदू के अंदर कोई विचार भी नहीं है। हिंदू को कोई अच्छा नेतृत्व चाहिए, हिंदू को आस्था चाहिए, हिंदू को विश्वास चाहिए। और ये सब चीजें संगठन के रूप में, उनको मार्गदर्शन के रूप में जब मिलने लगी तो हमको लगा कि देश के अंदर एक नयापन, एक विश्वास खड़ा होगा। और उसी में से निकला के 3 स्थानों पर एक अपमान का जो प्रतीक है वो हमेशा हिंदुओं के मन को कचोटता रहता है, दुख देता रहता है। वो 3 स्थान कौन से? तो अयोध्या, मथुरा और काशी। अयोध्या में किसका स्थान था? तो राम की जन्मभूमि। मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि और काशी में भगवान शंकर की। इन तीनों पर मस्जिदें बनी है। अयोध्या में बाबरी ढांचा था और मथुरा में शाही मस्जिद और काशी में ज्ञानगंगा। आज उनके लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन एक आंदोलन चला राम जन्मभूमि मुक्ति का। राम की जन्मभूमि मुक्ति के लिए हम लोगों ने गांव-गांव से अयोध्या जाना प्रारंभ किया। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन प्रारंभ किया और शिला पूजन जब प्रारंभ किया तो 125 रुपया हम लोग मंदिर निर्माण के लिए भी भेजा। बार-बार हम अयोध्या गए और एक समय 1992 में वो बाबर का जो ढांचा था सारे देश के नौजवानों ने मिलकर उसको 6 घंटे के अंदर ढहा दिया और उसकी एक एक ईंट वहां बची नहीं, केवल बचा थोड़ा सा मिट्टी का मलबा बचा, चूने का मलबा बचा। और उसी का एक चबूतरा बनाकर वहीं पर 4 बांस लगाकर और एक कपड़ा उतारकर रामलला को स्थापित कर दिया। जब से हम रामलला को काट में, तंबू में, झोंपड़ी में देखते हैं, दर्शन करने के लिए जो जाते थे उनके मन के अंदर उनका रक्त खौलता था। एक दिन भव्य मंदिर बनेगा, ये हमारा सबका संकल्प है। बार बार जाते थे, सरयू में स्नान करते थे, संकल्प करते थे, लेकिन आज वो समय ऐसा आ गया। फिर 30 साल के बाद उस आंदोलन को, उस अभियान को, उस संकल्प को एक सफलता मिली। आज अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। रामलला स्थापित हो गए। वो रामलला जो तंबू में थे, जो झोपड़ में थे,
वो रामलला आज अपने भव्य मंदिर में स्थापित हो। लाखों लोग अयोध्या जा रहे हैं, मथुरा की भी तैयारी चल रही है, काशी के अंदर भी मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है। मस्जिद को घेर कर कोर्ट में डाल दिया है। कोर्ट में जब तक मुकदमा फाइल नहीं होगा और इसके कागज जब तक आप लोगों के पास नहीं होंगे, जब तक आप इस पर नमाज अदा नहीं कर सकते। तो वह मुसलमान छुपके जाते हैं और दूर से अपनी नमाज अदा करके चले, पहरा है उसके ऊपर। लेकिन ये तीन नहीं है, इस देश के अंदर 30,000 ऐसे स्थान हैं जहां हिंदुओं के बहुत प्रमुख मंदिर थे, जिनको तोड़कर, जिनको ध्वस्त करके मस्जिदें बनाई, ईसाइयों ने चर्च बनाए। यहाँ नहीं चर्च दिखाई देते, लेकिन गोवा की, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ चर्च बने हुए हैं और वहाँ मंदिरों के पुजारी को उसी में दफना कर उसी के ऊपर चर्च बनाए। ऐसी सारी स्थिति हिंदुस्तान की थी। हिंदू अलग अलग भाषाओं में, जातियों में, इन सब में बटा हुआ था। उस विभाजन का इन लोगों ने लाभ उठाया, हमको बांट दिया। और फिर उस बालक ने कहा कि हिंदू सहोदर है, हिंदू भाई भाई है। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, आंदोलन में, अभियान में, संघ के आंदोलन और अभियान में, कार्यक्रम में हम भोजन एक साथ करते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ कार्यक्रम करते हैं। वेद के अंदर भी मंत्र आता है, संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम। जब साथ साथ काम करेंगे, एक मन से काम करेंगे, एक दिशा में चलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, भोजन करेंगे, एक साथ सब मिलकर रहेंगे, तो हमारी मन की भावना सब एक हो जाएगी। आज मंदिरों के अंदर भी जाते हैं, मंदिरों के अंदर कोई पूछता है कि आपका धर्म क्या है, आपकी पूजा पद्धति है क्या है? हम राम के ऊपर भी जल चढ़ाते हैं, शिव के ऊपर भी जल चढ़ाते हैं, पंचायत में जितने सारे देवते हैं उनको जल चढ़ाते हैं, और जल चढ़ाते चढ़ाते पुष्प भी चढ़ाते हैं, फिर मिष्ठान भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं। पिछला जो महीना निकला सावन का, पूरे महीने पर भगवान शिव के ऊपर हमने जल चढ़ाया। महाशिवरात्रि को सोमवार के दिन अभिषेक करते थे। संपूर्ण उत्तर भारत में, संपूर्ण देश के अंदर शिव जी की पूजा होती थी। अब ये भाद्रपद आ गया तो भगवान कृष्ण की पूजा अष्टमी से, भगवान कृष्ण की नहीं, उसके बाद गणेश जी की पूजा हो जाएगी। तो कुछ दिनों के बाद नवरात्रि आ जाएंगे, देवी की पूजा हो जाएगी। हमारे यहाँ हर मास के अंदर कोई ना कोई बड़ा त्योहार है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या है तो पूर्णिमा भी है। हर पूर्णिमा के अंदर किसी न किसी महापुरुष की जयंती है, किसी का अवतार हुआ है। तो ये देश कैसा था? इस देश त्योहारों का था, उत्सवों का था। इस देश के अंदर हर परिवार के अंदर एक उमंग थी, नए प्रकार का उत्साह था। क्यों? यहाँ की विदेशों के लोग बोलते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। भारत सोने की चिड़िया क्यों है? कि धर्मावलंबी लोग रहते थे, धर्म के लिए जीते थे, मोक्ष की कल्पना किया करते थे, इसलिए देवताओं की कल्पना, देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों के अंदर अर्चन करते हैं। और इस कारण कुछ भेदों ने, विभेदों ने हमारे अंदर भेद खड़ा कर दिया। कोई अछूत है, कोई सवर्ण है। अछूतों को मंदिर के अंदर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और सवर्ण जा सकते हैं। तो हमने तो भगवान शंकर की बारात को देखा है शिवरात्रि पर, जब बारात निकलती है तो उनके गण कौन है भाई?
तुम्हें कोई कह सकता है कि समझ रहे? एक तरफ देवता चल रहे हैं पीछे पीछे और आगे आगे उनके गण चल रहे हैं। गणों की पहचान क्या है? किसी के एक आंख है, किसी के नाक बड़ी है, किसी का कान बड़ा है, किसी का पेट बड़ा है, किसी का हाथ बड़ा है। अलग अलग प्रकार की विभूतियां उस शंकर जी के गण में, ये भेद खड़ा किया गया। उस भेद को हमने दूर कर, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने एक सामाजिक समता का प्रस्ताव पारित किया 1978 में प्रयागराज के कुंभ में। ये सारा हिंदू एक है, सारे हिंदू एक है, तो सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। तो फिर आया कि सब देवों को छोड़ आज भारत भूमि की पूजा करना प्रारंभ होगा, राष्ट्र देव का ध्यान करें। सारे देवताओं की हम पूजा करते, लेकिन भारत माता की पूजा करेंगे। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने साप्ताहिक सत्संग प्रारंभ कर दिए। देवताओं की आरती, सत्संग, भजन ये सब चलता रहा, लेकिन भारत माता की आरती करने के बाद ही हम प्रसाद वितरण करेंगे और वापस आएंगे। इस देश का चिंतन नौजवानों के अंदर प्रारंभ हो चुका है। इस देश के लिए जीने वालों की श्रृंखला बढ़ती चली गई। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो नौजवान इस देश की आजादी के लिए मचलता कि मैं गोली खा लूंगा, लेकिन इस देश को, भारत माता को आजाद करूंगा। आज विचार बदल गया। आज इस देश के लिए जीना सीखें। आज इस देश के जीने के लिए योग्यतम शिक्षा ग्रहण करें, हम सक्षम बने। हम विदेशों से भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस देश को सामर्थ्यशाली बनाएंगे। ये चिंतन प्रारंभ होगा। और आज इस देश का बहुत बड़ा बड़ा नौजवान, इस देश के अंदर बड़ा बड़ा व्यापारी है। उसका एक नहीं, अनेक देशों के अंदर उनका व्यापार है। जितना अपने देश का टर्नओवर नहीं है, उनकी देख उन व्यापारियों की, उन उद्योगपतियों की आमदनी है। और एक नहीं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अपने देश के लोग दुनिया के साथ व्यापार करते हैं। इस देश की आबादी 144 करोड़ से ज्यादा हो गई है। दुनिया के बड़े बड़े देश ये सोचते हैं कि भारत का बाजार यदि हमको मिल जाए तो हम मालामाल हो सकते हैं। ये चिंतन भी दुनिया के अनेक देशों का है। जहां चाइना का भी है तो वहां अमेरिका का भी है, जहां रशिया का भी है। ये क्यों? ये भी एक शक्ति है, महाशक्ति के रूप में। अमेरिका और चाइना व्यापारी है। रूस हथियार की सप्लाई करता है। आज रूस भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना ने हमको खोखला करने के लिए हमारे छोटे छोटे उद्योगों को चौपट कर दिया। और चौपट करने के बाद अपना सारा माल हमारे देश के अंदर बाजारों में भर दिया। यूज एंड थ्रो, कबाड़ खानों के गोदाम भरने लगे। जब कहा कि इस देश के अंदर चाइना का सामान नहीं बिकेगा, इतना कस्टम लगेगा और स्वदेशी वस्तुओं को जगह मिलेगी, तो हमारा नौजवान सोचने लगेगा कि हम अपने देश की वस्तुओं को खरीदेंगे तो हमारे भाई को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ी शक्ति इस देश के अंदर वो चालू हो गई है कि आप घर बैठो और मोबाइल चलाओ और आपके बेड पर सामान आ जाता है। आप पिज्जा मंगाओ या भोजन मंगा लो, कपड़ा मंगा लो या जूता मंगा लो, टाई मंगा लो या अंडरवियर मंगा लो, जो कुछ कहो फोन दबाओ और घर पर आ जाता है।